Hello my dear students, welcome to 12th HSC Accounts Revision. So today we are starting with accounts for not profit concerns topic. This topic is selected as per students demand and this topic is very important from exam point of view as well as from practical point of view. जैसे जैसे ये टॉपिक हम खत्म करेंगे आपको समझ में आ ही जाएगा why this topic is very important. So what we are going to learn in this topic, check. First, we are going to learn the meaning of what is not for profit concern. So, meaning of not for profit concern, then its features, then difference between profit organizations and not for profit organizations, then why there is a need for maintaining books of accounts and preparing final accounts of not for profit organizations, then the meaning of receipts and payment account, features of receipts and payment account, then types of receipts we are going to learn, important. Capital receipts and revenue receipts, then types of payments also, capital expenditure, revenue expenditure and deferred revenue expenditure. Then what is the format? Specimen means what? Format of receipts and payment account. Then meaning of income and expenditure account, uske features, then specimen, that is format of income and expenditure account, then the difference, distinction between receipts and payment and income and expenditure account, then how to prepare income and expenditure account, how to prepare balance sheet, then what are the implied adjustments that we are going to learn, then capital fund, what is the meaning of capital fund and its treatment, then specimen of balance sheet is format of balance sheet, then additional information में हम क्या क्या देखेंगे, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो ये आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में सीखा है, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस. देन एक्रूड इनकम, that is income receivable and income received in advance. Then subscription received in advance and outstanding subscription. Okay, so subscription is a income of the not for profit organization. Then depreciation, capitalization of entrance fees, creation of special funds out of donations, stock of stationery and opening balance of assets and liabilities. Then important terms we are going to learn, that is what is entrance fee, what do you mean by subscription, legacy, life membership fees, sale of old assets, scrap, newspaper, specific donations. So these are the learning outcomes, all these things we are going to learn in this topic. Okay, so we will start with the introduction. So देखो, there are two types of organization, profit making organizations, they are also known as trading organizations. ट्रेड का मीनिंग क्या है? बिजनेस. एंड दूसरा टाइप क्या है? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. तो आपने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी सीखा है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? टू अर्न प्रॉफिट. एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या मेंटेन करता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. और ये कहाँ से बनाते हैं? वो बेसिस क्या रहता है? ट्रायल बैलेंस इज द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. ओके, नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट. ओके, इसके नाम में ही है नॉट फॉर प्रॉफिट, तो ऑब्जेक्टिव इसका प्रॉफिट अर्न करना नहीं है. तो क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विसेज, टू गिव सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स और टू द सोसाइटी एट लार्ज. ओके, इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? एम क्या है? टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स और टू द सोसाइटी एट अ लार्ज. सो दैट्स व्हाई they are not formed for making profits. Okay, so अगर आपके किसी फ्रेंड्स ने आपको पूछा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. ओके, सो क्या क्या एग्जाम्पल्स है? देखो, स्पोर्ट्स क्लब, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, schools, colleges, universities,
trade unities, chamber of commerce, professional institutes, trusts, social welfare associations, religious concerns, libraries. तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस नॉट फॉर प्रॉफिट के अंडर कवर होते हैं. सो दैट्स व्हाई इट्स अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस का अकाउंटिंग कैसे होता है, आप जिस कॉलेज में जाते हो उस कॉलेज का अकाउंटिंग कैसे होता है, ये आज आप सीखने वाले हो. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. So what are the accounts prepared by these organizations? They don't prepare profit and loss account. They prepare income and expenditure account. Correct. They don't prepare trial balance. Instead, they prepare receipts and payment account. And they prepare balance sheet to know the net worth of the concern on a particular date. So final accounts में क्या क्या cover होता है? Income, expenditure account and balance sheet. Okay, so these are the organizations that provide social services and they promote art, culture, sports and education. Okay, and इनका इनकम सोर्स क्या रहेगा फिर? तो इनकम सोर्स मेनली रहता है सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फी. कॉलेज का इनकम सोर्स रहता है एडमिशन फी, फिर डोनेशंस गिवन बाय मेंबर्स एज वेल एज नॉन मेंबर्स, फिर ग्रांट्स एंड सब्सिडीज और कंसेशंस गिवन बाय द गवर्नमेंट. तो ये उनके इनकम सोर्सेस रहते हैं. सो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखो. इसका मैनेजमेंट कौन देखता है फिर? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कौन देखता है? सो मैनेजमेंट ऑफ सच कंसर्न्स इज डन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मेंबर्स. सो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है वो ही क्या करते हैं, इलेक्शन कंडक्ट करके उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मैनेजमेंट में आ जाते हैं. ओके, एंड दे लुक आफ्टर द मैनेजमेंट. सो दे आर मेंबर्स ओनली. सो उन मेंबर्स में से ही कुछ मेंबर्स सिलेक्ट होते हैं टू लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ दीज कंसर्न्स. ओके, सो दे हैव कैपिटल फंड. ओके, दे डोंट हैव कैपिटल, उसको वो क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड बोलते हैं. एंड कैपिटल फंड बनता कैसे है? सो कैपिटल फंड में एंट्रेंस फीस आते हैं, सरप्लस मतलब जैसे वहाँ पे प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट नहीं बोल सकते हम यहाँ पे बोलते हैं सरप्लस. एंड वहाँ पे लॉस रहता है तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं उसको, डेफिसिट. करेक्ट. सो एंट्रेंस फीस, सरप्लस, लीगसीज, डोनेशन स्पेसिफिकली रिसीव्ड फॉर कैपिटल फंड. तो ये सारा इंक्लूड होता है कैपिटल फंड में. ओके, सो ये सारे टर्म्स के मीनिंग हम देखने वाले हैं. सो डिफरेंस आपको आ सकता है एग्जाम में भी एंड यू कैन राइट इट इजीली. पहले तो ऑब्जेक्टिव, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड सर्विसेज. टू अर्न प्रॉफिट, टू प्रोवाइड सर्विसेज. प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कौन प्रिपेयर करता है? सबसे बड़ा डिफरेंस, ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करते हैं एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, दे प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट. करेक्ट. अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स क्या क्या आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट. एंड यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट में रिसीट्स, पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. नेट रिजल्ट्स, इसका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एंड यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट. एंड ओनर्स फंड और कैपिटल फंड. ओनर्स फंड इंक्लूड्स ओनर्स इन्वेस्टमेंट दैट इज कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. एंड यहाँ पे क्या रहता है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में कैपिटल फंड represents accumulated amount of surplus, subscriptions, donations and surplus as shown by income and expenditure account. So difference के क्या क्या points थे? पहले तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है. ओके, सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. ओके, उसके बाद preparation of trial balance, preparation of accounting statements, net results and
ओनर्स फंड. ओके, सो पहले ऑब्जेक्टिव, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है. एंड देन बाकी की चीजें जो है डिफरेंसेस के बाकी के जो पॉइंट्स है वो रिलेटेड टू अकाउंट्स है. देखो, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस रिलेटेड टू अकाउंट्स, then accounting statements, then net results, and then capital fund or owners fund. Okay, why there is a need for maintaining books of accounts and preparation of final accounts for not for profit organization. So इनका ऑब्जेक्टिव अगर सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करना है, प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो why there is a need to maintain books of accounts and final accounts for not for profit concerns. So देखो, they deal with the public money, क्योंकि एडमिशन फीस, डोनेशंस आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं, तो वो मेंबर्स से आ रहे हैं. करेक्ट. सो दीज कंसर्न्स आर आंसरेबल टू द सोसाइटी फॉर सच मनी कलेक्टेड एंड स्पेंट. सो ये पैसे पब्लिक से उन्होंने लिए हैं, तो उसका कलेक्शन, उसका जो यूज है वो किसके लिए किया है, उसके आंसर्स नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स को देने पड़ेंगे. सो दे आर आंसरेबल. सो हेंस प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी मेंटेन. सो फॉलोइंग आर द रीजन. फर्स्ट, टू मेंटेन प्रॉपर कंट्रोल ओवर द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. जो कैश के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उस पर कंट्रोल रखना चाहिए. देन टू नो द सोर्सेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. सो वो बुक्स मेंटेन करने के बाद ही समझ में आएगा कि क्या क्या इनकम के सोर्सेस है एंड क्या क्या एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं. देन नेक्स्ट इज टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ लॉज एप्लीकेबल. सो अगर ये ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो मुंबई ट्रस्ट एक्ट, मुंबई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंडर इनको रजिस्टर करना पड़ेगा. जैसे पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एक्ट के अंडर, कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंडर, वैसे ही चैरिटेबल ट्रस्ट को मुंबई पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट के अंडर रजिस्टर करना पड़ेगा. एंड अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज है तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी एक्ट है, उसके अंडर भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. एंड एक्ट के जो भी लॉज है वो इन ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं रिलेटेड टू बजट, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, रजिस्टर्स टू बी मेंटेन. फिर अनदर रीजन इज टू नो द सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द कंसर्न, देन टू नो द नेटवर्थ. सो सरप्लस डेफिसिट कहाँ से समझेगा? बाय प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. एंड नेटवर्थ कहाँ से समझेगा? बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट. एंड टू अवॉइड माल प्रैक्टिसेस एंड misappropriations of cash and assets. So this was the introductory part of not for profit organizations. Okay, so आज हमने मीनिंग देखा, फीचर्स देखे, डिफरेंस देखा बिटवीन profit organizations and not for profit organization. Now we will start with the meaning of receipts and payment account. So जो not for profit organization के डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं कैश बुक में. एंड कैश बुक से उसका पोस्टिंग होता है लेजर अकाउंट में. सो कैश बुक देन लेजर अकाउंट, ये आपने दोनों सीखा है इन 11th स्टैंडर्ड. सो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में लेजर अकाउंट के बैलेंस क्लोज करके वो ट्रायल बैलेंस में जाते थे. करेक्ट. फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स लेजर अकाउंट एंड कैश बुक का बैलेंस जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर. सो आपको पार्ट समझ में आ गया क्या? डे टू डे ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, वहाँ से पोस्टिंग होगा लेजर अकाउंट में एंड लेजर अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस विल गो टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट. ओके, आपने पर्सनल रियल नॉमिनल सीखा है 11th में. ओके, उसमें से ये रियल अकाउंट है. इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जो है वो रिकॉर्ड नहीं होते, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस, कैश बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उतने ही रिकॉर्ड होंगे. क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, इनकम रिसीवेबल, एक्सपेंडिचर पेएबल. सो रिसीवेबल पेएबल आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है. इट्स अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस ऑन अ पर्टिकुलर डेट. ऑल रिसीट्स are shown to the debit side and payments are shown to the credit side. Okay, so ये start होता है ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस से एंड एंड होता है विथ क्लोजिंग
कैश एंड बैंक बैलेंस। सो रिसीट्स में क्या क्या आता है, all receipts are debited to receipt and payment account। सो इसमें करंट ईयर की रिसीट रहेगी, प्रीवियस ईयर की रहेगी या नेक्स्ट ईयर की रहेगी, आपको चेक नहीं करना है। रिसीट हुई, रिसीट साइड को रिकॉर्ड कर देना है। आपको नेचर भी देखना नहीं है, ये रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। सिमिलरली ऑल पेमेंट्स विल बी क्रेडिटेड टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। वहाँ पे भी आपको ईयर देखना नहीं है, करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है, नेक्स्ट ईयर का पेमेंट किया है। पेमेंट किया ना तो क्रेडिट साइड को लिख देना है ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। एंड वहाँ पे भी आपको नेचर नहीं देखना है कि रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल, सभी पेमेंट्स वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। सो कुछ खास बातें, फीचर्स देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के। इनकम रिसीवेबल एंड अमाउंट्स पेएबल आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। एंड इसका बेस क्या है, जैसे ट्रायल बैलेंस इज द बेस टू प्रिपेयर P&L एंड बैलेंस शीट। सो फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जिसमें आता है इनकम, एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, तो उसका बेस क्या रहेगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, सो टाइप्स ऑफ रिसीट्स क्या रहेंगे, नेचर ऑफ रिसीट्स जो हम बोल रहे थे, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। सो बहुत इजी है। कैपिटल रिसीट्स मतलब क्या, जो नॉन रिकरिंग नेचर के हैं एंड दे आर नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे कि एग्जाम्पल स्पेसिफिक डोनेशंस फॉर बिल्डिंग, तो वो रेगुलरली नहीं मिलता है, करेक्ट। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, लाइब्रेरी और लाइफ मेंबरशिप फीस, सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स एसेट्स। So these are the examples of capital receipts. They are non-recurring in nature and they are not forming part of regular flow of income. Okay? And capital receipt आप कहाँ पे दिखाओगे, accounting treatment, either you will add in the capital fund or you will show it separately on the liability side of the balance sheet. Okay? And revenue receipts, they are recurring in nature and they form part of the regular flow of income. ओके, सो इसके एग्जाम्पल्स क्या है, लॉकर रेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रेंट। ओके, सो रिसीट्स में देखो, अगर रेवेन्यू नेचर का रिसीट है, मतलब जो रिकरिंग है एंड इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम, देन इट विल बी डेबिटेड। ओके, it will be credited to income and expenditure account। ओके, एंड कैपिटल नेचर का रिसीट है तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। ओके, तो ये दोनों टाइप के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड को जाते ही है ऑन रिसीट साइड। ओके, सेकेंड इफेक्ट क्या रहेगा, हर एक ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट रहते हैं, इसको ही डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। तो एक इफेक्ट तो देखा हमने, सारे रिसीट्स कहाँ पे जाएंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड को, दैट इज डेबिट साइड को। सो क्रेडिट इफेक्ट क्या रहेगा, आइदर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट को जाएगा अगर वो रेवेन्यू नेचर का है तो, एंड इफ इट्स अ कैपिटल रिसीट इट विल गो टू बैलेंस शीट ऑन लायबिलिटी साइड। ओके, देन पेमेंट्स के भी कुछ टाइप्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगेन इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये एक्सपेंडिचर जो है, और इसका बेनिफिट जो है, ये एक्सपेंसेस करके आपको बेनिफिट लॉन्ग पीरियड के लिए मिलेगा, नॉट जस्ट फॉर 12 months। सो लाइक अ परचेस ऑफ लैंड, फर्नीचर, मशीनरी। ओके, एंड दे आर शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड उसके बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड होंगे। सो हर एक का मीनिंग हम देख रहे हैं एंड इमीडिएटली उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देख रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दे आर रिकरिंग इन नेचर, उसका बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा, एग्जाम्पल सैलरीज, टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रीमियम एक्सेट्रा। सो सैलरी आपने एक मंथ की पे की तो उसका बेनिफिट, एम्प्लॉयज की सर्विसेज आपको एक मंथ के लिए ही मिलती है, नेक्स्ट मंथ के सैलरी आपको फिर से पे करनी पड़ेगी, देन यू विल गेट द सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज फॉर द नेक्स्ट मंथ। सो इसके बेनिफिट जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए है, इट्स अ रिकरिंग इन नेचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ ये। एंड अनदर
type is there deferred revenue expenditure. So actually they are revenue expenditure only, उसके नाम में ही है देखो revenue expenditure, सिर्फ उसको deferred किया है, deferred revenue, deferred या deferred. deferred revenue expenditure मतलब क्या, उसके benefit आपको मिलेंगे more than 1 year पे. ओके, सो एग्जाम्पल यहाँ पे हमेशा रहता है एडवर्टाइजमेंट का. सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस यू आर पेइंग, सो यू हैव पेड 30,000 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस फॉर 3 years. तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ 10,000 दैट इज 1/3 आप डेबिट करोगे एंड बाकी के 20,000 बैलेंस शीट में ही रहेंगे ऑन द एसेट साइड, एंड ये 10,000 डेबिट होगा ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. So 1/3 part will go to income expenditure and 2/3 will remain in balance sheet or asset side. So second year में क्या होगा, और 10,000 डेबिट हो जाएंगे, करेक्ट, ऑन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड एसेट साइड को कितना रहेगा फिर 10,000 रहेगा. एंड थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, रिमेनिंग 10,000 विल गो टू द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड को बैलेंस 0 हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. ओके, एज ऑन नहीं, एज ऑन सिर्फ बैलेंस शीट रहता है. ओके, रिसीट्स रुपीज के 2 कॉलम्स प्रिपेयर करने, याद रखना एग्जाम में. ओके, एंड यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे पेमेंट्स चाहिए, पेमेंट्स के भी 2 आप रुपीज के कॉलम बनाओगे. सो रिसीट्स इट स्टार्ट विथ ओपनिंग कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो सारे इधर आ जाएंगे. फिर सब्सक्रिप्शन सभी ईयर्स का, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, एंट्रेंस फी, एडमिशन फी. सो ये सारे रिसीट्स यहाँ पे डेबिट हो रहे हैं, एंड क्रेडिट साइड को, पेमेंट साइड को सारे एक्सपेंसेस है. बैंक ओवरड्राफ्ट है तो यहाँ से स्टार्ट होगा क्रेडिट साइड से, देन एक्सपेंसेस सैलरीज, रेंट वगैरह है, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंसेस वगैरह. ओके, एंड देन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक. एंड ओवरड्राफ्ट है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड को आएगा. सो दिस वाज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. ओके, उसका मीनिंग, फीचर्स देखा हमने, रिसीट्स के टाइप्स देखे, पेमेंट्स के टाइप देखे, एंड फॉर्मेट भी देखा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का. सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट concepts of same topic. So thank you very much for watching.